اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو فاغسلوا وجوہکم، بس اپنے چہروں کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور ہاتھوں کو دھو کونیوں تک، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو دھو تم ٹخنوں تک۔ اب اسی کے ضمن میں تفسیر تو زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن قصہ مختصر سادہ مسئلہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ وضو کے طریقے کے بارے میں، کہ وضو کا طریقہ پراپر کیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کہ جس کے تھرو 4 فرائض ثابت ہیں، آگے وضو کے اندر کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں، وضو کے اندر مکروہات بھی ہیں۔ اب ان کے بارے میں آج صرف طریقہ ڈسکس کریں گے، اس کے بارے میں انشاءاللہ سنتوں کے بارے میں علیحدہ، مستحبات کے بارے میں علیحدہ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ بفضل خدا، لیکن ڈونٹ سکپ، کیونکہ انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو میرا خود کا ایمان کہتا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ لازمی ہوگا۔ سب سے پہلے لفظ وضو ہے یا وضو ہے یا وضو ہے؟ وضو اس کا معنی ہوتا ہے دھونا۔ عرف عام میں لفظوں میں غلطی کی جاتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ لفظوں کی غلطی پہلے سیٹ کی جائے۔ وضو کا معنی ہوتا ہے دھونا، اور وضو واو کے اوپر زبر لگا کر اس کا معنی ہوتا ہے وضو سے بچا ہوا پانی مراد ہے، اس سے وضو جو فقہ کے اندر لفظ ذکر کیا گیا وضو۔ اور نمبر 3 وضو، اس کا معنی ہوتا ہے لوٹا جو واش روم کے اندر یوز کیا جاتا ہے۔ اب وضو دھونے کی تعریف اگر سادہ لفظوں میں کروں تو دھونا اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی عضو پر پانی بہایا تو کم از کم اس سے 2 قطرے ٹپکنے چاہیے، اس کو وضو کہتے ہیں، دھونا اس کو کہتے ہیں سادہ لفظوں میں۔ آگے وضو کرنے کا طریقہ، سب سے پہلے تو نیت المومنین خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب آپ نے جو وضو کرنا ہے اس کے لیے پہلے نیت کرنی کہ میں پاکی حاصل کرنے کی نیت کر رہا ہوں، میں ثواب اللہ رب العالمین کی بندگی حاصل کرنے۔ ویسے نیت کی اگر تعریف کروں، دل کے پکے ارادے کو نیت کہتے ہیں، زبان سے اگر کہہ لیں گے تو ایک مستحب عمل ہے، مطلب ثواب ہے، کہ نہیں کہتے تو گناہ نہیں ہے، آپ پر وضو ہو جائے گا۔ اب وضو کی نیت کر لیتے کہ میں پاکی حاصل کرنے لگا ہوں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ اب اس کے بعد بسم اللہ کہہ کر، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے۔ مجمع الزوائد کتاب کا نام ہے، مجمع الزوائد آئی تھنک، تو اس کے اندر آتا ہے کہ جب تک وہ بندہ وضو میں رہے گا تب تک فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے، تب تک اس کے لیے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب اس کے بعد ہاتھ دھوئے، بسم اللہ والحمدللہ کہہ کر ہاتھ دھو لیے، اس کے بعد ہاتھوں کا آپس میں خلال بھی کر لیا، ایک دوسرے یہ اچھی طرح سے خلال جب کر لیا تو اس کے بعد پھر اب نل بند کر لے، کوشش کر لے کہ نل بند کرنے کی عادت بنائے جس طرح۔ اس کے بعد کلی کی، ایک کلی کرنے کے بعد، کلی سے پہلے بلکہ مسواک کریں گے۔ مسواک کے بارے میں بڑی حدیث تو ایک بات کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، لیکن زیادہ کیونکہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر حدیثیں بھی ساتھ میں ایڈ کریں۔ شارٹ لفظ میں مسواک 3 مرتبہ مسواک کرے گا، اور ہر مرتبہ نئے سرے سے، مطلب پانی کے ساتھ دھولے گا مسواک کو، پھر اس کے بعد کرے گا۔ اور مسواک کرنے کے طریقے میں اکثر لوگ غلطی کر دیتے، کیا یہ اس طرح کرتے ہیں، مسواک اس طرح نہیں کرنی، یہ لمبائی میں نہیں کرنی، چوڑائی میں مسواک کرنی ہے، دائیں طرف کے اوپر والے حصے سے پھر بائیں طرف کا اوپر والا، پھر نیچے والا، پھر یہ نیچے والا، یہ ختم ہوگی۔ مسواک کر لی، اب ہر مرتبہ دھو لینی ہے، کیونکہ امام غزالی فرماتے ہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد وضو کرتے ہوئے مسواک کرتا ہے، اب اس کی آگے جو تعلیل فرمائی ہے کہ جب بندہ کامل وضو کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، تو جب نماز پڑھتا ہے نا تو فرشتہ آتا ہے، اس کے لبوں کے ساتھ اپنے کان لگاتا ہے کہ اس کے جو سنتا ہے، جو وہ کلمات نکالتا ہے وہ سن کر لے کر جاتا ہے۔ تو لیکن اگر کوئی بندہ وضو نہیں کرے گا، وضو میں مسواک کو یوز نہیں کرے گا، تو فرشتوں کو وہ اسمیل آئے گی، وہ جو آپ کی ہے بدبو آئے گی، جس سے ان کو تکلیف پہنچے گی، اذیت پہنچے گی۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ مسواک لازمی پکڑے۔ اب اگر مسواک نہیں ہے آپ کے پاس تو کیا کرنا ہے؟ تو کسی کپڑا بھی ہے، فقہ کے اندر کپڑے کا ذکر بھی ہے، لیکن زیادہ تر اگر کپڑا بھی نہیں ہے تو پھر آپ یہ شہادت والی فنگر، دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے دانتوں کو اچھی طرح صاف کریں گے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کریں گے۔
कुली नहीं होता, कुल्ली होता है, तीनों मर्तबा कुल्ली करेंगे। इस तरह के पूरा मुंह इसको जुम्बश देनी है, हरकत देनी है अच्छी तरह से, ऊपर नीचे दाएं बाएं। और अगर रोजा नहीं है तो गरारा भी कर ले, क्योंकि गरारे के अंदर पानी हल्का फुल्का हलक के अंदर निकल जाता है, इसलिए रोजा नहीं है तो फिर गरारा भी कर ले, वरना कुल्ली अच्छी तरह से कर ले। उसके बाद अब कुल्ली कर ली, कुल्ली करने के बाद नाक में पानी चढ़ाया, दाएं हाथ से नाक में तीनों मर्तबा पानी चढ़ाया। और अगर रोजा नहीं है तो इसमें भी नाक में पानी खींच ले, जिस तरह गुस्ल में किया जाता है। गुस्ल में फर्ज होता है, इसमें सुन्नत है, वुजू के अंदर सुन्नत है। अब नाक में पानी खींचा, उसके बाद बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करेगा, नाक साफ कर लिया। अब उसके बाद फिर 3 मर्तबा चेहरा धोएगा। चेहरा कहां से कहां तक धोना है? पेशानी के बाल, अमूमन जहां से ये पेशानी के बाल, ये सर वाले बाल जो है ये उगते हैं, यहां से ये वाला पोर्शन, यहां से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, ठोड़ी के नीचे तक धोना है। और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, जो कि ये वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन बनता है। और अगर दाढ़ी बंदे की ज्यादा बड़ी नहीं, मतलब मेरी यहां से है ज्यादा, यहां से कम है, तो ये वाला पोर्शन जो है इसका धोना जरूरी है, फर्ज है, ये इसमें शामिल है फर्ज के अंदर, क्योंकि ये देखें आप गौर से तो नजर आ रहा है, सारा नजर आ रहा है, तो इसका धोना फर्ज है, लाजमी है। अब अगर दाढ़ी यहां पे घनी है तो फिर खिलाल किया जाएगा, यहां पे कोशिश करें कि धो लिया जाए, क्योंकि यहां पे ज्यादा नहीं होती दाढ़ी, यहां से धो लिया जाए और नीचे वाली जो है इसका खिलाल। अब खिलाल करने का तरीका भी बयान किया गया है कि खलाल ये नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह ये खलाल किया जाए अच्छे अंदाज में, कोशिश करें कि नीचे तक अगर पानी पहुंचाना पॉसिबल हो तो पहुंचाएं, वरना फिर खिलाल कर ले, वो किफायत कर जाएगा। अब उसके बाद अब ये चेहरा भी हो गया, चेहरा धोने के बाद बाजू धोने हैं। अब बाजू धोने में गलती भी करते हैं कुछ गलती बताता हूं किस सूरत में, कि हाथ नल खोला और हर मर्तबा ये नल को बंद करने की आदत बनाए। मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इसराफ फजूल खर्ची की तरफ ये जाता है। अब ये हाथों की जो उंगलियां हैं ये नल के नीचे करेगा, नल के नीचे करते हुए पूरी कुनी, ये कुनियां जो है ये यहां तक धोएगा। और अच्छा तो अफजल अमल ये बताया गया कि पूरा आधा जो बाजू है उसको भी धो ले साथ में, ताकि ये कोई भी जुज इसका रह ना जाए। अब इसमें गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं? पहले बता दूं, पहले दायां हाथ फिर बायां हाथ, 3 मर्तबा। अब गलती क्या करते हैं हमारे घरों में, इस्लामी बहन या इस्लामी भाई, ये 3 मर्तबा ये लिया, चुल्लू में पानी लिया, ये 3 मर्तबा ऐसे कर लिया। इस तरह से वुजू हो जाता है, लेकिन चूंकि 3 मर्तबा हर आज़ा को धोना ये सुन्नत मुबारक है, तो वो सुन्नत अदा नहीं होगी। वो सुन्नत अदा नहीं किस तरह? मुमकिन है 1 मर्तबा धोया ऊपर वाला हो गया, दूसरी मर्तबा धोया नीचे वाला हो गया, साइड में तो रह गया। अब अगर 1 मर्तबा आपने पूरा धो लिया, 3 मर्तबा कहा चलो जी ऐसे ऐसे कर लेता हूं, ये 3 मर्तबा किया, मुमकिन है कि दूसरी मर्तबा में रह जाए, तो वो खिलाफे सुन्नत हो जाएगा। वुजू अलबत्ता हो जाएगा पूरे को धोने से, लेकिन खिलाफे सुन्नत होगा, ये सुन्नत मुबारका वाला अमल नहीं होगा, खिलाफ सुन्नत हो जाएगा। आगे अब ये हो गया, कोशिश करें इसमें भी नल बंद करके फिर अच्छी तरह हाथ के साथ इसको साफ किया जाए। उसके बाद अब मसा करने का तरीका, मसे का मतलब होता है पहुंचाना, पानी का पहुंचाना, ये 1 मर्तबा है, बाकी चीजें 3 मर्तबा है, ये 1 ही मर्तबा में है। किस तरह में मुकम्मल इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। पहले तो नल के नीचे हाथ किए, हाथ करने के बाद नल बंद कर दिया, हाथों से उंगलियों में से पानी टपक रहा होता है, वो टपकने देना है। आधे क्या करते हैं, ये छटकाना है, ये छिड़क देते हैं पानी को, ये नहीं करना चाहिए, मकरूह के जुमरे में है। अब उसके बाद ये 3 उंगलियां, शहादत और अंगूठा, ये 2 को छोड़ के बाकी 3 उंगलियां, सिर्फ 3 उंगलियां, ये कैब मैंने उतार दी अपनी। और अगर इस्लामी बहन वुजू के बारे में वीडियो देख रही है तो अगर घर के अंदर है तो कोशिश करें दुपट्टा उतार के कर ले, लेकिन अगर कहीं बाहर है जिसमें गैर महरम का है खर्चा तो दुपट्टा नहीं उतारे, दुपट्टा सर पे ही रखे और मसा करे। अब मसा करने का तरीका, 3 उंगलियां, भाई भी इसी तरह और बहनें भी इसी तरह, 3 उंगलियां ये लेके जानी जहां से अमूमन बाल उगने, ये उगते शुरू, जहां से उग रहे हैं उगने शुरू होते हैं अमूमन, इससे नीचे चेहरा धोना है, इससे ऊपर यहीं से स्टार्ट करेंगे। 3 उंगलियां, पानी टपक रहा है, ये 3 उंगलियां ये लेके जा रहे हैं और सिर्फ 3 उंगलियां, मेरी देखेंगे वाले तौर पे 3 उंगलियां ही लगी हुई है, सिर्फ 3 उंगलियां ही लगानी है। ये हथेली, ये आधे ऐसे करते, ये भी गलत है, ये नहीं, ये 3 उंगलियां ये, और तीनों उंगलियों को ही लेके जाना है, ये लेके जा रहे हैं। फिर नीचे पीछे खोपड़ी के पीछे खला होता है, गुद्दी जिसको बोलते हैं, गुद्दी, उस खला तक लेके जाना है, नीचे तक। फिर उसके बाद अब बाल तो लंबे होते हैं लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये नीचे तक लेके जाना है, क्योंकि मसे का माना मैंने शुरू में बताया पहुंचाना होता है, धोना नहीं होता। ये नीचे तक लेके गए, 3 उंगलियां लगी हुई है। अब वहीं से मैंने 3 नहीं 5 फिंगर्स उठा दिए,
पांचों उंगलियां उठा दी है, हथेलियां में लगा के ये पीछे की तरफ लेके आ रहा हूं। यहां पे मैंने हथेलियां लेके आया हूं। हथेली में ख्याल रखिएगा ये उंगलियां साथ में ला देती है, ये देखिए ये लेके आते हैं, ऐसा नहीं करना। ये तीन हथेली लेके आए, हथेली लेके आ गए वापिस। अब उससे डायरेक्ट इसी तरह कानों के अंदर शहादत, और ये अंगूठा बच गया हमारा, शहादत वाली फिंगर से कानों के अंदर अच्छे अंदाज में पूरी तरह, और अंगूठे से कानों के बाहर, ये हो गया। अब उसके बाद उल्टे हाथ से गर्दन का मसा करना। अब इसमें भी थोड़े से गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि ये गर्दन के साथ साथ ये पूरा गला भी आ गया। गर्दन का मसा करना है, गले का मसा नहीं करना, ये बात का ख्याल रखिएगा। गर्दन ये वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन, इसका मसा करना है, गले का मसा नहीं करना। अब ये मसा हमारा मुकम्मल हो गया कि मसा इस अंदाज में करना है। मसा ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद अब सबसे लास्ट में पांव धोने हैं, टखनों समेत। टखनों तक नहीं, क्योंकि तक कुरान पाक की आयत वो को मिनल मराफिक वमसाहु बिरुसिकुम वारजुलकुम मिनल काबैन के पांव धो टखनों तक। अब तक नहीं, उससे थोड़ा ऊपर करेंगे। बल्कि अच्छा अमल तो ये है, अब मैं पांव तो दिखा नहीं सकता क्योंकि बैठे हुए सूरत में। अब पांव आदि पिली धो ले, पिंडली, पिंडली उर्दू का लफ्ज है, पिली पंजाबी में भी बोला जाता है। पिली आदि पिली तक धो लिया जाए उसको। अब पीली तक धो लिया जाए, ये हमारा अब वुजू ये मुकम्मल हो गया। पांव की उंगलियों का भी खिलाल करेंगे। अब खिलाल करने का भी तरीका प्रॉपर बयान किया गया। क्या कि बाएं हाथ की छोटी उंगली, ये फर्ज कर ले ये पांव है मेरे, अब ये पांव है तो ये दायां जो है इसकी छिंगली छोटी उंगली से स्टार्ट करना है, ये दरमियान वाला हिस्सा। अगर ये रह जाएगा तो वुजू नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिए, बात होते हैं कि जिनका पांव की उंगलियां जो है वो बिल्कुल साथ मिली हुई होती है, साथ मिली हुई थी, जिनमें पानी नहीं जाता, तो इस सूरत में वुजू नहीं होगा, खिलाल जरूरी है। अब ये छोटी उंगली से खिलाल मैंने करना स्टार्ट किया, ये उसके साथ वाली, उसके साथ वाली, ये अंगूठा हो गया, ये पांव का, सही है। फर्ज करने को बोला, ये ना हो कि ये हाथ का ही समझिए, ये पांव का हो गया। अब उसके बाद यही वाली फिंगर दाएं हाथ में भी उसी तरह, दाएं में भी अंगूठे से स्टार्ट करेंगे। बाएं हाथ में था कि छिंगली से छोटी उंगली से स्टार्ट करना है, और दाएं में अंगूठे से उसी तरतीब से अंगूठे तक आपने पूरा इसको खिलाल कर लेना है। ये अब वुजू हमारा मुकम्मल हो गया। अब वुजू के बाद कलमा शहादत और उसके साथ एक दुआ। कलमा शहादत, दूसरा कलमा जो शहादत है, शहादत का मतलब गवाही देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके बारे में आता है, हदीस पाक में आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा वुजू के बाद कलमा शहादत पढ़ता है तो जन्नत के उसके लिए 8 दरवाजे खोल दिए जाते, जिसमें से चाहे एंट्री कर ले, जिसमें से चाहे एंट्री कर ले। कितना प्यारा अमल है। वुजू के बाद कलमा शहादत, सिर्फ ये कलमा शहादत पढ़ना। उसके बाद दूसरी दुआ, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीना वजअलनी मिन इबादिका सालिहीन। ये दुआ पढ़ना, ये भी मुस्तजाब मतलब मुस्तहब अमल है, ये भी दुआ पढ़ लेनी चाहिए। ये मतलब 2 दुआएं होगी, एक कलमा शहादत, दूसरी ये दुआ जो अभी मैंने जिक्र की। ये 2 दुआएं पढ़ना ये मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है, कर ले तो सवाब है, नहीं करे तो गुनाह नहीं। हदीस मुबारका मैंने पहले भी अर्ज कर दिया है कि हदीस मुबारका में आता है कि 8 दरवाजे उस बंदे के लिए खोल दिए जाते हैं। और अगरचे दूसरी दुआ का माना बताऊं तो माना बड़ा प्यारा दिया गया कि अल्लाहुम्मा जल्नी, है अल्लाह इजअलनी, मुझे बना दे, मिनत तव्वाबीना, तौबा करने वालों में से, वजअलनी, और मुझे बना दे, मिनल मुतत्तहिरीना, पाकीज़ा लोगों में से, पाकों में से कर दे, वजअलनी मिन इबादिका सालिहीन, और मुझे बना दे, मुझे कर दे, मिन इबादिका सालिहीन, अपने सालेह परहेजगार बंदों में से, अपने नेक बंदों में से अल्लाह ताला मुझे कर दे। ये एक अच्छा। और इमाम गजाली तो बल्कि यहां तक फरमाते हैं कि जब बंदा जो उज़्व धो रहा है उसमें ये नियत करे कि मेरे इस उज़्व के गुनाह झड़ रहे हैं, ये एक अच्छा अमल है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैरा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई सवाल है तो वो जरूर पूछें। जज़ाकल्लाहु खैरा।